So giving the question to answer to Bharat, actually, we can extend this theory to n dimensions also. So you have for complex analysis, I'm not very sure. Look, I'm not the right person to ask this question to, because I do not have an experience of complex analysis of multi variables. That part I don't know. Obviously, mathematicians do that. That is complex analysis of multi-variable functions also they do. That is complex analysis of several variables also they do. I am quite acquainted with real analysis of several variables. So the question to your answer is yes. So path independence must also be ensured in 3 dimensions, 4 dimensions, or whatsoever. So for example, if I have to define in proper my partial derivatives, so I will write this way. So this is a scalar function. Here you have input Rn. So if I have to say that I have to define my the function, the derivative of partial derivative of function with respect to ith coordinate, what I would say, let's say x1 x2 dash 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 xi plus h dash 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 xn minus f of x1 comma x2 dash 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 xi dash 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 xn divided by h. So I can extend this particular thing in n dimensions also. Okay. At n dimensions, you'll have to select, for example, in 3 dimension, the neighborhood would become a ball, that is unit ball. Okay. Here you had this kind of thing in n dimension, in 3 dimensions, this particular neighborhood will become this thing. So if I'm saying I'm stating the neighborhood is in 2 dimension to be disk. In 3 dimension, it will become an open ball, or you can say an open sphere. This is how you're going to define in 3 dimension. And in n dimension, you can use the Euclidean norm and do the same. I hope Bharat को answer मिला, नहीं मिला. Obviously, we'll see all these things probably in tensor and all those things, but not exactly in tensor. But yes, well, n dimensions or to where would be able to exploit. I will try my level best कि जितना हमारा exam में है, और otherwise also we'll do it. There are people in the group itself, like Diksha is there, Bharat, and other people are there who have taken the course on multivariate analysis last year itself. So they have gone through all these things. Okay, so let us move forward to what we were discussing last. So if I say my Cauchy-Riemann conditions are met, does it mean fz is differentiable? Answer is no. Answer is no. अब तुम कहोगे यार ये क्या हो गया? So I'm saying it may be possible that Cauchy-Riemann conditions are met at a point, that is Cauchy-Riemann condition at a point, you can say that they exist, but your function is not differentiable. तो अब तुम कहोगे एग्जाम में हम क्या कर रहे होते हैं? तो एग्जाम में तुम ये कर रहे होते हो, एग्जाम में बोला जा रहा होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है. तुम देखना फिजिक्स का कोई भी एग्जाम आएगा, वो लिखेंगे एफ जेड इज एनालिटिक. तो तुम क्या करते हो? इफ एफ जेड इज एनालिटिक, तुम फटाफट हाथ चलाते हो, तुम देखते Cauchy-Riemann कंडीशन होल्ड कर रही है, हाँ चलो आगे बढ़ो. ठीक है. पर मैथ्स वाले बच्चे जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनका कचरा हो जाएगा एग्जाम में. ठीक है. सो दे हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि इफ Cauchy-Riemann कंडीशंस आर मेट, इट डज नॉट इंप्लाई एफ इज डिफरेंशिएबल. You see the very premise of very foundation of what we started with. So the very foundation was itself that your function is differentiable. Here it is. So I took that my function is differentiable. When I'm stating that my function is differentiable, then I'm ending up finding the Cauchy-Riemann conditions. If I'm saying Cauchy-Riemann conditions, does it imply if z exists? No. The answer is no. So you have to make this understanding, at least mathematics student, you have to make this understanding that what conditions are necessary, what conditions sufficient, does the converse hold. So in mathematical term, I would say that the converse of this statement does not hold. That is, if my Cauchy-Riemann conditions are met, I cannot state that my function is differentiable. Okay, yes or no? Yes, that is very true. If Cauchy-Riemann conditions are not met, then my function is not differentiable. So in mathematics, what do? If a statement P implies Q, Q would imply not P. That is absolutely fine. But Q implies P, मतलब हो जाएगा converse also hold. तुम समझो, कोई स्टेटमेंट P दे रखा है, अगर P ट्रू है और Q ट्रू हो जा रहा है, इसका मतलब एक स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट का मतलब ये, अगर Q होल्ड नहीं कर रहा है तो P भी होल्ड नहीं करेगा. कोई दिक्कत नहीं. पर अगर Q होल्ड करने से P होल्ड कर गया, इट इंप्लाइज कन्वर्स की बात हो रही है कि कन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है. So, मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो सुन रहे मेरे को, डू अंडरस्टैंड दैट कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड. यस और नो? दीक्षा समझ में आया बेटा? एग्जाम्पल वेरी स्टैंडर्ड. हाँ बेटा बोलो. हाँ चली गई, आवाज नहीं आ रही. दीक्षा क्या हुआ बेटा, बोलो.
सर कुछ नहीं। ठीक है, सो वेरी स्टैंडर्ड एग्जांपल, तुमको पिछले साल कराया भी हुआ है एंड यू हैव टू एडमिट इट कि तुम्हें कराया हुआ है। ऑब्वियसली तुम नहीं मुझे बोलोगे, बट स्टिल आई वुड से दिस क्वेश्चन हैज बीन गिवन इन द क्लास। देखो तुम, अब तुम कहोगे भैया ये तो रियल और जेड तो आपने पढ़ाया नहीं, ये सब तो झूठ बोल रहे हो आप। सो हियर इट इज, सो रियल पार्ट ऑफ जेड इज एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज वाई मॉड। सो दिस फंक्शन तुम्हें याद है, यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। लेट अस ट्राई टू फाइंड at 0,0 whether the Cauchy-Riemann conditions are met or not। जो फिजिक्स के बच्चे हैं, अगर नहीं भी समझ में आए, एज अ स्टेटमेंट याद करो, एज अ स्टेटमेंट याद करो, if function is differentiable, Cauchy-Riemann conditions are met। if Cauchy-Riemann conditions are met, it is not necessary that function is differentiable। एग्जाम्पल ये याद करो, खत्म काम। कोई भी इंटरव्यू में इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा कोई भी आदमी तुमको पूछने पे। पर जो मैथ्स वाले इसलिए मैं कर रहा हूँ थोड़ा, लेकिन इसके बियॉन्ड हम थोड़ा सा भी फिजिक्स वाला भी करेंगे, डोंट वरी। ओके, सो जल्दी से इसको समझते हैं। हम देखते हैं कि 0,0 पे क्या कॉशी रीमान कंडीशंस मीट हो रही है कि नहीं हो रही। लेट अस चेक। इन ऑर्डर टू सी द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू एट 0,0, देखो ये फंक्शन है, ये प्रॉपर्ली रियल फंक्शन है, इसके आगे कहीं आयोटा थोड़ा लगा नहीं है। इस फंक्शन में u तो हो गया रूट ओवर मॉड ऑफ एक्स वाई, मानते हो? और v क्या हो जाएगा बेटा, 0। हाँ या ना, सारे बच्चों बोलो। Yes, sir. So we are going to evaluate the derivative of u with respect to x at 0,0. So what you have to do, you have to find 0 plus h, 0 minus u of 0,0 divided by h. Yes or no? u क्या है, देखो रूट ओवर x और y। x की जगह क्या रखना है h, y की जगह क्या रखोगे 0, तो ये हो जाएगा 0 minus 0 डिवाइडेड बाय h, 0। खत्म काम। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y निकाल लें। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y एट 0,0, वो भी क्या आएगा, रूट ओवर, यहाँ पे क्या आएगा u 0, k माइनस u 0,0 डिवाइडेड बाय k। देखो पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू k में आपको इंक्रीमेंट कहाँ देना पड़ेगा, y पे, और पॉइंट क्या देखो 0,0, तो y पे इंक्रीमेंट देना मतलब 0 प्लस k करना, x में इंक्रीमेंट देना मतलब 0 प्लस h करना। ये क्या आएगा 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय k टेंस टू 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, आंसर क्या है 0। इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u एट 0,0 इज 0। v ऑलरेडी 0 था, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करो, x करो, हमेशा 0 आएगा आंसर। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y कितना है, 0। और पार्शियल डेरिवेटिव विद ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x करो, वो भी क्या आएगा 0, क्योंकि v खुद क्या है 0, तो विद रिस्पेक्ट टू x करो वो भी 0। इन एनी केस कॉशी-रीमान कंडीशंस आर मेट। हाँ या ना बच्चों, कुछ तो बोलो यार। नहीं आ रहा तो प्लीज ना भी बोल दो, चलेगा, एब्सोल्युटली फाइन, पर चुप मत रहो। यस और नो, कहाँ गए सबके सब? Yes. यस भैया। चलो ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लो, डोंट वरी, ऐसा मत सोचो, यहाँ वैसे ही कोई किसी को नहीं देख रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, अब देखते हैं क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। लेट अस सी दैट ये फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट 0। लेट अस ट्राई। तो इन ऑर्डर टू सी दैट योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्या करोगे, लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0, अभी भी सिखाया, f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ जी डिवाइडेड बाय डेल्टा जी। और याद करो z है क्या, हम कहाँ चेक कर रहे हैं सब कुछ, ओरिजिन पे, तो z क्या है खुद 0,0 मानते हो। क्योंकि z 0,0 है तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू f ऑफ डेल्टा z माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा z, मानते हो। क्योंकि देखो z तो क्या है 0, वी आर इवेल्युएटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स एट 0,0। मैं तुम्हें एग्जांपल में पहले बोल दिया चीज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ डेल्टा z कितना होगा खुद सोचो, इट वुड बी इक्वल्स टू, it would be equals to what, root over delta x into delta y। डेल्टा z क्या है, देखो डेल्टा z मतलब क्या हुआ, डेल्टा z इज डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। और वो कह रहा है कुछ भी तुम फंक्शन में डालोगे f में, आई विल रिटर्न यू, कहाँ गया सॉरी, आई विल रिटर्न यू x इंटू वाई। आर यू गेटिंग, एफ जी यहाँ पे x प्लस आयोटा y दोगे, ये रिटर्न क्या करेगा, x इंटू वाई। So instead of x, you are having delta x and delta y. So I'm writing this way, divided by, divided by this thing. So divided by delta x plus iota delta y. Yes or no? Take any path y equal to mx. So as x tends to 0, y tends to 0. So obviously you are approaching origin via this path y equal to mx.
put it here. So what you will get, root over m into delta x का whole square divided by delta x plus iota delta x into m. So y is mx, so delta y will be equals to m times delta x. So what you will get root over m divided by 1 plus iota m. So if I was evaluating the derivative of the function, that is fz ka derivative at 0, 0, I'm getting the limit to be part dependent. Cauchy-Riemann condition hold कर रही देखो ऊपर, just see that your Cauchy-Riemann conditions are holding, but your function is non-differentiable at 0, 0. So always remember this particular point. कंफ्यूज मत हो जाना फिजिक्स वाले बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है? तुम्हारे एग्जाम में मोस्टली फंक्शन एनालिटिक दे रखा होता है and you can simply check whether the Cauchy-Riemann conditions are met or not. But for mathematics people who have joined the lecture, I'm just stating that if your Cauchy-Riemann conditions are holding, it does not necessarily imply that your fz is differentiable. दीक्षा समझ में आया बेटा? Yes, sir. समझ में आया? Okay. ठीक है. So having said all these things, what will be an easier route in the examinations? What will be an easier route in the examination? So जो physics वाले बच्चे हैं और इनफैक्ट मैथ्स वाले बच्चे हैं, let us try to focus on an easier approach. So ये जो Cauchy-Riemann conditions आपको दे रखी थी, उनको कैसे और compact करके लिख सकते हैं? Okay, can we write it in all the more compact fashion? The answer to this question is yes, we can write it. Surely we can write it. How to go about it? I'll tell you. Okay. So in most compact form, the Cauchy-Riemann conditions can be stated as del f upon del z bar equals to 0. So what does it imply? It implies that if I'm stating that my function is differentiable, if I'm stating my function is differentiable at z, then I would mean my Cauchy-Riemann conditions are holding, yes or no? And if I'm saying my Cauchy-Riemann conditions are holding, that means del f upon del z bar is equal to 0. यहां तक बात समझ में? del f upon del z bar equal to 0. अब तुम बोलोगे यार ये क्या हो गया? देखो, just see this particular thing and you will be able to understand. Okay, and you will be thinking ये सब मैं क्यों करा रहा हूँ? There are reasons. There are enough reasons why I'm doing it. So अगर तुम ये बोलो कि ये क्यों किया, थोड़ा सा चेन रूल पता हो तो मैं बता रहा हूँ तुमको. देखो z बार क्या होता है, याद करो, x माइनस आयोटा बाय आई है ना, ठीक है? z बार क्या होता है, x माइनस आयोटा बाय, और f किस पे डिपेंड करता है, x पे भी और y पर भी. देखो x अल्टीमेट f किस पे डिपेंड करता है, x पे और y पे. अल्टीमेटली किसका फंक्शन आता है, x और y के तो फंक्शन आएगा f, आया ना? सो अगर मैं del f अपॉन del z बार लिखने की कोशिश करूं तो del f अपॉन del z बार क्या आएगा, del f अपॉन del x इंटू del x अपॉन del z बार. कोई दिक्कत चेन रूल से? प्लस del f अपॉन del y और del y अपॉन del z बार. कोई दिक्कत इसके अंदर? आया ना? मैं ये कंडीशन को एक्सप्लॉइट करना बता रहा हूँ. देखो ये कंडीशन समझ में आ रही, del f अपॉन del z बार. थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, पहले समझने की कोशिश करो. del f अपॉन del z बार ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत? f किसका फंक्शन है, x और y का. z किसका फंक्शन है, x और y का. तो मैंने del f अपॉन del x कर दिया, यहाँ del x अपॉन del z बार कर दिया. कोई इशू? दिस इज चेन रूल. इट इज चेन रूल इन 2 डायमेंशंस. ओके, सो अब सोचो del z बार अपॉन del x क्या था, 1. देखो आंखों से, ये देखो, del z बार अपॉन del x क्या आएगा, 1. और del z बार अपॉन del y कितना आएगा, आई थिंक माइनस आयोटा. तो अगर मैं del x अपॉन del z बार लिखूं तो वो 1 हो जाएगा, और अगर मैं del y अपॉन del z बार लिखूं तो आई थिंक वो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आयोटा. यस और नो? आया ना? जल्दी कुछ तो बोलो. Yes, sir. तो del f अपॉन del x थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं. और del x अपॉन del z बार कितना हो जाएगा, 1. दिस विल बिकम एज माइनस 1 अपॉन आयोटा, ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बिकम दिस. सो अल्टीमेटली तुम यू विल एंड अप गेटिंग दिस रिजल्ट. अब सोचो f खुद क्या है, f मैंने अभी भी लिखा है u प्लस आयोटा v. अगर मैं यहाँ u प्लस आयोटा v लिखूं तो क्या आएगा, del u अपॉन del x प्लस आयोटा del v अपॉन del x प्लस आयोटा del u अपॉन del y प्लस आयोटा del v अपॉन del y. मानते हो हाँ या ना? इक्वल टू 0. थोड़ा सोच के जवाब दो. क्या इसको मैं अगर रियल को रियल से इक्वेट करूं तो ऐसा नहीं आ रहा, del u अपॉन del x इज इक्वल टू del v अपॉन del y? चेक करके बताओ. और अगर मैं इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करूं तो क्या है, del v अपॉन del x इज इक्वल टू माइनस del u अपॉन del y. नहीं है क्या? सो योर Cauchy-Riemann conditions आर सेम एज राइटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. हाँ या ना? पहले बताओ हाँ या ना? Okay, so as a physics person, you have to keep a notice on this particular thing
कि हमारी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पहली चीज कॉशी-रीमान कंडीशंस होल्ड कर जाएंगी, और थोड़ा ध्यान से देखें तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार जीरो आ जाएगा। यस, what does it imply? It implies f must be independent of z bar. कहीं पर भी z बार आ गया, काम खत्म, फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता। दिस इज द की दैट यू हैव टू रिमेंबर। f must be independent of z bar. कहीं पर भी z बार दिख गया आपको एक्सप्रेशन में, बस वही चैप्टर क्लोज कर दो, फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। आई एम स्टेटिंग p implies q, then q not implies not p। मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कॉशी-रीमान कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर कॉशी-रीमान कंडीशन होल्ड नहीं करती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये जो स्टेटमेंट है q implies p, ये होल्ड नहीं करता है। कॉशी-रीमान कंडीशन अगर होल्ड करी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। दैट इज द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट दैट आई स्टेटेड डज नॉट एग्जिस्ट। भूल जाओ इस बात को। इस बात को याद रखो, अगर कॉशी-रीमान कंडीशन होल्ड नहीं करती तो आपका स्टेटमेंट p भी रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर किसी तरीके से भी अगर आपकी कॉशी-रीमान कंडीशन होल्ड नहीं करती, इसका मतलब अगर फंक्शन z पार पे डिपेंड कर गया, बात खत्म, चैप्टर क्लोज, वही क्वेश्चन खत्म कर दो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल दैट आई स्टेटेड वेरी फर्स्ट। तो जहां से कहानी चालू की थी वहीं आ जाता है। कहानी यहां से चालू की थी, याद करो क्या बोला था। दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। एग्जाम्पल नंबर 1, आज क्लास जिससे स्टार्ट की, कैन आई नॉट राइट इट इन दिस फैशन? कैन आई नॉट राइट इट इन दिस फैशन? मानते हो हाँ या ना? भरत समझ में आया बेटा? Yes, sir. And can I not write it in this fashion? इसको z बोल दो, इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखें। क्या ये z माइनस जेड बार डिवाइड बाय 2 आयोटा नहीं हो जाएगा? सोचो, अपना पेन कॉपी चलाओ, अपना समझ में आएगा मैं क्या लिख रहा हूं। इतना तो सोचो। z क्या होता है? x प्लस आयोटा बाय z बार क्या होता है? x माइनस आयोटा बाय। तो क्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये नहीं हो जाएगा? तो क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, जिसको मैंने सुबह ड्राइव किया, ऐसे नहीं लिख सकता? व्हाट डज इट इंप्लाई? इट इंप्लाइज z प्लस, इस चीज को देखें, ये कितना हो जाएगा? माइनस, है ना? आई थिंक, है ना, यही होगा ना? यहां तक कोई दिक्कत? अब आयोटा आयोटा को ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो कितना है? माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा अंदर एब्जॉर्ब करा लिया तो कितना आएगा? प्लस जेड बार माइनस जेड। हाँ या ना? द फंक्शन एफ जेड डिपेंड्स ऑन जेड बार, चैप्टर क्लोज, फंक्शन कैन नॉट बी एनालिटिक। यही पढ़ा था सुबह सुबह। अच्छा सॉरी, आई हैव नॉट स्टेटेड एनालिटिक। अभी के लिए बोलो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियल। ओके नाउ, एक मिनट रुकी जाओ, मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, सो व्हाट इज एनालिटिक वो भी समझ लो। ठीक है, व्हाट इज एनालिटिक वो भी समझ लो। इफ आई से एनालिटिक, सॉरी माय बैड, आई फॉरगॉट। सो व्हाट इज एनालिटिक? If I say my function is analytic at point z equal to z naught, if I say my function is analytic at z equal to z naught, then f must be differentiable in some neighborhood of z naught. So if I'm saying my function is analytic at z naught, then my function must be differentiable in some neighborhood of z naught. तो differentiability ऊपर पढ़ी ली अभी अभी। So अगर मेरा function differentiable in some neighborhood of z equal to z naught, I would say my function is analytic about point z naught, plus function should be single valued। अभी सिंगल वैल्यूड की क्या कहानी है वो बाद में समझेंगे, मल्टी वैल्यूडनेस, पर एक बार को समझो, फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड and also that your function must be differentiable in the neighborhood of that particular point where I'm saying that my function is differentiable. So right now, if I'm saying my function is non-analytic, I would mean my function is non-differentiable. Okay? Yes or no? Yes or no? जल्दी बताओ बेटा। हाँ भैया। ठीक है, चलो एक ट्राई करके बताओ। सेकंड नंबर, एक क्वेश्चन करो, मुझे बताओ वेदर एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज एनालिटिक। हाँ या ना? No, sir. नो। कैसे होगा? अभी भी बोला कि अगर No, फंक्शन sir. जेड बार पे डिपेंड कर गया, कैसे एनालिटिक होगा? यस और नो? कहाँ गए सब? Yes, भैया. यस, ओके ओके ओके। सो फाइंड मी द पॉइंट्स
एक क्वेश्चन कैसे करते हैं, फाइंड मी द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स, या फिर ऐसे कह सकते हैं, फाइंड द पॉइंट्स वेयर mod z का होल स्क्वायर इज एनालिटिक, फाइंड द पॉइंट्स वेयर mod z का होल स्क्वायर इज एनालिटिक। सो mod z का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा बताओ, mod z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मानते हो? So, इसका मतलब इसका u तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका v हो गया 0। So if at all it is analytic, if at all it is analytic, then Cauchy-Riemann conditions should be met, मानते हो? If I'm saying that my function is analytic, I mean on all those points my Cauchy-Riemann conditions must meet. Yes or no? If I'm saying for a region my function is analytic, I would mean that my Cauchy-Riemann conditions must hold on that particular region. So why should I not use Cauchy-Riemann condition here? So del u upon del x should be equal to del v upon del y, and del u upon del y should be equal to del v upon del x. Yes or no? So if my function is analytic at some points, then my Cauchy-Riemann conditions must hold on that point. It implies if my Cauchy-Riemann conditions are holding on that point, so del u upon del x would give me x equal to 0, and del u upon del y would give me obviously 2. So 2 I'm submerging in 0, so no need to go about it. So what it gives me that my function is analytic only at origin. Yes or no? समझ में आया नहीं है, ऊपर चला गया सबके? Yes or no? आगे बढ़ो। Yes. ठीक है, इनफैक्ट रिमेंबर दिस कि कॉशी रीमन कंडीशन एग्जैक्ट 0,0 को होल्ड कर रहे हैं, सो दे डोंट सो दिस पर्टिकुलर mod z का होल स्क्वायर इज नॉट इवन एनालिटिक एट एनी नेबरहुड ऑफ 0,0। इनफैक्ट ये सिर्फ एक पॉइंट पे ही एनालिटिक है, दैट इज 0,0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो याद रखो कॉशी रीमन कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होगा। सो ये कॉशी रीमन कंडीशन सिर्फ एक ही पॉइंट पे होल्ड कर रही है, नॉट इवन द विसिनिटी ऑफ इट, इट इज एग्जैक्टली एनालिटिक एट दिस पॉइंट 0,0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक बात समझ में आई? हाँ चलेंगे सारे बच्चे, हाँ या ना, फटाफट। Yes, sir. So let us try to do some question from exam so that you get motivation कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में आता है, ऐसी बात नहीं है। So let us do a question which appeared in JEST, I think 2019 if I'm not wrong. You can go and check it also somewhere. Let us see this question. F of x comma y was given as this particular thing. Okay, and it was asked in which domain this function is analytic. In which domain this function is analytic? So option number 1 given was first and second quadrant. So quad I'm writing means quadrant, okay? The second option that was given was second and third quadrant. The third option was given to be second and fourth quadrant. And the option number D was given as none. So this was as in just, so you have to see, देख लो exam में आता है. I'm not saying कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ exam में नहीं आता. It comes. Quite often it will come. So I'm giving you, I think I should give you around 5 minutes or 2 minutes to do this question. So just take 2 minutes, try to do it. If you're not able to, then I will be doing it. So this is an important section of complex analysis. यहाँ से समझ लो तुम्हारा एग्जाम का चालू हो गया।
ओके, सो शुड आई डू, करें? सेकंड एंड फोर्थ। वेरी गुड, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, दीक्षा करे बेटा। यस सर। चलो दीक्षा बताएगी, दीक्षा सबसे इंटेलिजेंट बच्ची क्लास की, तो दीक्षा बताएगी। बेटा दीक्षा बोलो, पहले बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या होते हैं? पॉजिटिव, मानती है हाँ या ना? यस सर। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इसको एक बार लिखने की कोशिश करें। बोल क्या होगा? सिंपली एक्स माइनस आयोटा वाई होगा, मानते हो? यस सर। अच्छा ये बताइए होता क्या है, क्या ये जेड बार नहीं होता तुम्हारा? थोड़ा ध्यान से देख, एक्स जेड बार, अरे जेड बार भूल गई क्या? कॉन्जुगेट बेटू। यस सर। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जल्दी बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा? नेगेटिव। अच्छा मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, तुम भूल गए हो तो। मॉड ऑफ एक्स क्या माइनस होता जेड। है? इट इज इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। अगर नेगेटिव है तो मॉड एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से। तो सोचो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सिमिलरली मॉड वाई के लिए भी सेम गेम है, ठीक है? तो मॉड वाई कैन बी रिटन एज वाई इफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड इट कैन बी रिटन एज माइनस वाई इफ वाई इज लेस देन जीरो। आइडिया क्या है? वाई अगर नेगेटिव है तो उसके आगे एक नेगेटिव और लगा दो, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। याद करो, मॉड्यूलस क्वांटिटी आपको एब्सोल्यूट नंबर देती है, मतलब पॉजिटिव नंबर ही देती है। ओके, चलो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होगा, तो वो तो एज इट इज आएगा। लेकिन एक्स क्या होगा? खुद नेगेटिव होगा। बात समझ रहे हो? हाँ या ना? कहाँ चले गए सारे सारे बच्चे? यस सर। यस सर, माइनस जेड। ठीक है, सो कहाँ गए ये? सिंपली इट विल बी इक्वल्स टू माइनस जेड। हाँ या ना? यस सर। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक्स अगर नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स को क्या लिखोगे? माइनस एक्स नहीं लिखोगे? अभी भी बताया मैंने, देखो ये आंखों के सामने लिखा हुआ। एंड सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो वाई नेगेटिव हो गया जेड तो ये बार। क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा वाई, और ये हो जाएगा माइनस एक्स, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? माइनस जेड बार नहीं हो जाएगा? और एफ एक्स कॉमा वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में, आई थिंक अगर मैं सोचूं तो क्या होगा? आई थिंक एक्स की जगह एक्स रहेगा, और जेड। ये प्लस में आ जाएगा, राइट? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। यस सर। वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, दिस विल बी अ जेड, जेड सिंपली। तो देखो यहाँ माइनस जेड आ गया और ये जेड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसको। लेकिन ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, हियर फंक्शन कैन नॉट बी एनालिटिक। ओके, यस और नो? और ये तुम यस चाहो तो सर। चेक कर लो, बाकी आंसर क्या होगा? 2 and 4। बताओ तो या कौशी रीमन कंडीशंस लगा सकते हो 2 और 4 पे, यू विल फाइंड दैट indeed they are analytic. So this particular function would be analytic at quadrant number 2 and quadrant number 4. So whatever the answer is, I think C would be the answer to this particular problem. Yes or no? समझ में आई मेरी बात? कहाँ चले गए बच्चे? दीक्षा समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, अल्पना समझ में आई बात? भैया। गोपाल हाँ समझ भैया। में आया बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये अभी फिजिक्स वाले हैं, तो अभी इनके तो ऐसे ही आते हैं। मैथ्स में यू विल हैव थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है? देखते हैं अपन वो, अलग से देखेंगे, ठीक है? सो ओके, चलो एक क्वेश्चन करो, ये आई थिंक नेट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है WTF, समझना ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हेनेवर आई एम राइटिंग W2F इट इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिटिक फंक्शन, which of the following is an analytic function of z in the domain से कंफ्यूज मत होना, थोड़ा आराम से शांति से सोचना, in the domain mod z less than 2। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, एक इसने एक डोमेन बनाई है, कैसी? एक डोमेन है जिस इट इज ऑफ रेडियस 2 enclosing 0, और बोल रहे which of the following is an analytic function। let me write these questions। तो सबसे पहला है 3 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई पावर 7, ठीक है? अच्छा एक चीज मैं लिख देता हूँ, रिमेंबर दिस कि z रेज टू पावर n इज एनालिटिक। अभी के लिए इतना लिख लो, मैं बाद में इसको डराइव भी करा दूंगा, जिससे कि तुम कंफ्यूज नहीं हो। z रेज टू पावर इज एनालिटिक इफ n बिलोंग्स टू नेचर, कोई दिक्कत नहीं। z एनालिटिक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। z की पावर n ऑल्सो इज एनालिटिक फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचर, याद कर दो अभी। प्रॉब्ली विल डिराइव इट एनी टाइम, लेकिन अभी के लिए समझ लो, बिकॉज क्वेश्चन में ही आ गया ना, पावर आ गया इसलिए बोल, ठीक है?
1 plus x plus iota y raised to power 4 into 7 minus x plus iota y raised to power 3. Similarly, you have 1 minus 2x minus iota y raised to power 4, and you have 3 minus x minus iota y raised to power 3, and you have option D, x plus iota y minus 1 raised to power 1 by 2. So which of the following is an analytic function of z? So how to go about it? So ये मैं बता ही दूंगा, कल बता दूंगा पॉसिबली, नहीं तो याद कर लो, नो बिग डील, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है. इफ z is analytic, then z raised to power n for all n belongs to natural is analytic. Okay, this remember this, don't worry about it. इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, because it will take again a lot amount of time, and moreover it is a theoretical kind of stuff, so possibly not much applicative thing can be made out of it. So let us start with the first option. So पहला ऑप्शन कौन बताएगा? दीक्षा बताएगी. सेकंड ऑप्शन भरत बताएगा. थर्ड, फोर्थ. ठीक है, तो पहला दीक्षा बताएगी. बेटा दीक्षा बोलो, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? 3 प्लस, क्या ये z बार नहीं दे रखा? ध्यान से देखो, द फर्स्ट ऑप्शन, क्या ये z बार नहीं दे रखा? ध्यान से देखो. अगर Yes, मैं x माइनस आयोटा y लिख रहा हूँ, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया? आई एम राइटिंग z बार. किसी भी फंक्शन के अंदर z बार दिख जाए, भूल जाओ, इट कैन नॉट बी एनालिटिक. ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी एनालिटिक. भरत, सेकंड वाला बताओ. It's not analytic. क्यों? क्योंकि Because देखो ये second वाला term पोर्शन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस z बार की पावर 3. यस और नो? यहाँ Yes. इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉमन ले लो तो x माइनस आयोटा y नहीं हो जाएगा. ये तो चलो z है, लेकिन यहाँ टर्म किस पे डिपेंड करके? z पे. इन एनी केस इट कैन नॉट बी एनालिटिक. ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी बताओ. It can be. इट कैन बी एनालिटिक. हाउ? Because x plus iota y term is z. There is no z bar term. Okay, so there is no z bar term. Okay, I don't know. Let me see. तो चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. 3 प्लस z की पावर 3 हो गया. ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? कैन वी नॉट राइट इट एज 1 माइनस x? Is there something wrong in this problem? Is there something wrong in this problem? I don't know. अगर ये 2x है, then it cannot be analytic. चलो, let me see, let me check. D option बताओ. D option, anybody has any idea? It can be analytic. D option, D option. D option cannot be right because, वो मैं तुम्हें reason बताता हूँ, because there's a possibility of branch point here. So ये अभी के लिए you just escape this particular thing. मैं तुम्हें आगे बताऊंगा something called as branch point. So here you have a branch point at z equals to 1. So you have a branch point at z equal to 1. Power देखो 1 by 2 है, ये मैं आगे बताऊंगा. So इसको leave it for a time. For time being, leave it. ठीक है? So this cannot be analytic. Option number A and option B cannot be analytic. Obviously, option number C would be analytic. But I think there's a problem with the question. Just let me check. Meanwhile, okay. So overall, ये समझने की कोशिश करो. A function can be analytic only if it depends on z and not z bar. So if any of the option contains z bar, it cannot be analytic. ठीक है, ये बात समझ में आई? Yes, sir. Sir, इसमें सर इस क्वेश्चन में डोमेन mod z less than 2 का क्या यूज है? This is what I was saying. एक just give me a minute ना, थोड़ा सा मुझे टाइम दोगे थोड़ा सा. This is question थोड़ा गलत दे रखा है ना. Option number C was not this. Okay, हाँ सॉरी, क्या बोल रहे हो? वापस बोलो. डोमेन z, देखो डोमेन mod z लेस देन 2 का मतलब ये दे रखा है कि अगर mod z लेस देन 2 आएगा ना, इसके अंदर ये पॉइंट कंटेन हो जाएगा. बेसिकली ये लास्ट वाला थोड़ा ध्यान से देखने के लिए देखो. लास्ट वाला जो है वो z इक्वल टू 1 पे नॉन एनालिटिक होगा, तो और z इक्वल टू 1 जो है आपकी गिवन डोमेन के अंदर आ रहा है. बाकी सारे फंक्शन तो देखो पॉलिनोमियल फंक्शंस है, इनको पॉलिनोमियल बोलते हैं. अगर तुम इसको एक्सपैंड करोगे तो यू विल गेट सम पावर्स ऑफ नेचुरल नंबर पावर ऑफ y एंड x. वो थ्रू आउट कोई दिक्कत नहीं देते हैं. बस पॉसिबली इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ z बार आ गया. क्योंकि z बार आ गया तो यू कैन नॉट जस्टिफाई इट एनीवे. बात समझ में आ रही है मेरी बात? देखो जो है ना, प्रॉब्लम इसके साथ एक यही है कि इसके अंदर जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन के अंदर अगर ब्रांच पॉइंट की बात करोगे तो ब्रांच पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी. ओके, अभी के लिए समझो, ब्रांच पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी. अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको याद कर लो या लिख लो इसको एग्जैक्टली कि ब्रांच पॉइंट अपने को आगे पढ़ना है.
So we'll see what are branch points, but right now just write it somewhere. Okay. और रही बात इस ऑप्शन की, जो सेकंड ऑप्शन है ना, आई एम फाइंडिंग इट, आई थिंक कुछ गलती है उसके अंदर, बिकॉज अगर ये x रह गया, इफ इट इज 2x हियर, देन सम x वुड रिमेन, एंड इफ x वुड रिमेन, आई कैन राइट इट इन रियल पार्ट ऑफ z. सो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं रुका हूँ. There is some issue with this. I don't know exactly what is an issue, but I think. Okay, so this is a problem. Sorry, my bad. एक मिनट रुको. Just give me a minute. मैंने जल्दीबाजी में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया. So this was this. Okay. So okay. अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं वापस से. So again consider option number B and C. एक गलती कर दी थी, यहाँ प्लस नहीं है, नेगेटिव है. ओके, यहाँ नेगेटिव है, थोड़ा ध्यान से देखें तो ये देखो x माइनस x माइनस आयोटा y है, इसको क्या लिखोगे 7 प्लस z, नॉट z बार. ओके, बात समझ में आई? यहाँ प्लस नहीं था, यहाँ नेगेटिव था. ओके, सो कंसिडर नेगेटिव हियर. कोई इशू? नहीं भैया. है ना. और जो पहला पार्ट है आपका वो क्या आ गया, 1 प्लस z की पावरफुल. कोई दिक्कत? तो देखो ये पूरी तरीके से z पे डिपेंड कर रहा है. दिस इज एनालिटिक. अब तुम कहोगे मैं रुका हुआ क्यों था? देखो रीजन ये है, मैं ये बस चेक कर रहा था कि पेपर -2x दे रखा ही देखा, तो पेपर -2x ही दे रखा है. तो थोड़ा ध्यान से देखो, इस टर्म को देखो. इस 2x के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा लिखूंगा, देखो 1 माइनस 2x माइनस आयोटा y. इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. माइनस कॉमन लो, दिस इज z. इसको ध्यान से देखोगे तो एक x अलग कर दो और एक x अलग ले जाओ. तो दिस इज योर z. आई हैव नो इश्यूज विद दिस. दिस इज योर x. x हैपेंस टू बी रियल पार्ट ऑफ z. और रियल पार्ट ऑफ z को क्या लिखोगे, z प्लस z बार अपॉन 2. अल्टीमेटली किस पे डिपेंडेंस आ गई, z बार पे, इसलिए कैंसिल कर रहा हूं. इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से देख रहा था. यहाँ एक एरर होगी मुझसे, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव. ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ है ना बेटा? क्लियर सर. ठीक है. सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? तो मोस्टली यू विल फाइंड दैट इन योर एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर अराउंड दिस पर्टिकुलर थिंग. सो यू कैन डू इट. In any case, you can do it. So possibly today itself, I will leave you with some homework on group. So I'll put some questions on group. You try to do those questions so that तुम्हारी preparation उसके अनुकूल चलती रहे. So I don't think इसमें कोई issues होंगे. समझ में आई मेरी बात? हाँ भैया. Yes. Okay. Second, please try to keep any book along with you. मतलब कोई बिना book के मत पढ़ो. मतलब you can entirely rely upon me, but थोड़ा सा you start doing some book. So at least get done with any of the mathematical physics book. Any book, you can purchase any book. I can recommend. If you ask me recommendation, I would give you only one recommendation. So possibly you can purchase this book. Again, it is a very, very, very costly book. So it is around 3,000 rupee book, I think. On अभी hard cover, non hard cover है तो 900 की है. I would recommend you this, but again, इससे कुछ भी नहीं आने वाला exam. So you can go through Mathematical Physics by V.K. Balakrishnan or Ashken Weber for that matter. So these two books I have studied. I would not say studied, but I have studied in some parts. So I can recommend you these two books. Okay, I cannot go beyond. So तुम्हारे लिए if you are not very well acquainted with these, or we cannot think, because इनको पढ़ने के लिए you need some vision कि यार कहाँ से क्या पढ़ना है. अगर वो नहीं आ पा रहा, so you try to do these two books, or possibly you can purchase any of them. इनमें से कोई भी एक बुक पकड़ लो and try to do. These two are very good books, ना? So these are good practice books. None of those things which are written in this book are going to come in the examination. That is the certainty. But still try to do any questions. If you want to do any question, you can purchase any of these books and do. And even if you are not willing enough to do that, because possibly you don't have time in PhD or anything, try to at least go through PYQs of GATE, NET and JEST. इतना भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा. इतना भी कर लोगे अभी के लिए तो. हाँ बेटा. सर ये बालाकृष्णन वाली बुक फिजिक्स वालों के लिए सही है? हाँ, परफेक्ट. तुम्हारे लिए तो बहुत ही सही है. तुम QIC कर रहे हो, तुम्हें तो तगड़ा चाहिए भाई. तुम चाहो तो मैथ्यूस एंड वॉकर भी ले लो. मतलब समझ में आ जाएगी ना सर? बिल्कुल मैथमेटिकल समझ बैकग्राउंड है. में आ जाएगी. बिल्कुल समझ में आ जाएगी. इनफैक्ट तुम एक काम करो, ये बुक खरीदो, अकम्पनी इट विद द लेक्चर्स ऑफ V.K. बालकृष्णन. यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैथमेटिकल फिजिक्स. कोई दिक्कत जी नहीं. ठीक है, चलो आज के लिए काफी है. टेक केयर, मिलते हैं. थैंक यू सर. ओके, चलो बाय.